Good morning, students. How are you all? I welcome you in EVS online class. And yesterday we were reading chapter number 9, Eating Together. Eating together. इकट्ठे बैठकर खाना. Okay. So we have read that our family members should eat together in one meal time. We call the extend the family members on occasions during birthday parties, family wedding, anniversaries, festivals. Different foods are prepared on the different occasions, right? And we have done about that when a large group of people eat together, it is known as community eating. And then we have read eating together at school, that there are many students who live in a school, stay together, study together, and they are known as boarding school or hostels, where they live away from their parents. And in a boarding school, the meal are served in a large number in a dining hall at fixed time, and there is one ma'am who is known as warden, who will look that every child should eat the food and they should eat properly and ensure that the student observe discipline during the eating. So today we will start with the midday meal. Okay, we are going to start the midday meal, and it's on page number 55. Okay, so keep finger. Many children belonging to poor families in India do not get even one whole meal a day. वो कह रहे हैं कि कुछ बच्चे इतने गरीब होते हैं कि वो इतने पुअर फैमिली को बिलोंग करते हैं कि उनको खाने एक टाइम का खाना या पूरे दिन का खाना नसीब नहीं होता है. They do not go to school because their families cannot afford. Afford means कुछ खरीदने के योग्य. मीन्स उनकी फैमिली इतनी गरीब होती है कि वो कुछ खरीद नहीं सकते हैं. बिकॉज और वो कह रहा है कि कुछ बच्चे ऐसी फैमिलीज को बिलोंग करते हैं जिनको एक टाइम का या पूरे दिन का खाना नसीब नहीं होता है और वो स्कूल में भी नहीं जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी पढ़ाई. ओके, वी आर लकी दैट आवर पेरेंट्स आर सेंडिंग आवर स्कूल. We are having nice clothes to wear. We have 3 times a meal to eat. We drink food. We drink milk. Everything our parents give us. We should thankful to our parents as well as to the God also. So come back to the topic. So कुछ ऐसी पुअर फैमिलीज हैं इंडिया में जो कि सारा दिन या कुछ खाने को उनको नहीं मिलता है. तो जिनको खाने को नहीं मिलेगा तो वो अपने पेरेंट्स बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकते. तो hence the government of India introduced a scheme called the midday meal. तो गवर्नमेंट है जो इंडिया की, उन्होंने एक स्कीम चलाई है जिसे कहते हैं मिड डे मील. ओके, under this scheme all primary students studying in government school are provided with hot cooked food free of cost. तो इस स्कीम में क्या है कि जितने भी प्राइमरी सेक्शन के बच्चे हैं उनको खाना दिया जाता है बिल्कुल मुफ्त. उनको कोई खाने के लिए पैसे नहीं भरने पड़ते हैं. They provide nutritious food to the children and bring about a feeling of togetherness and sharing among them. तो इससे क्या होता है, बच्चों को पौष्टिक खाना मिलता है
और उनको एक साथ रहने की फीलिंग्स आती हैं, बांटना सीखते हैं वो लोग। It helps to educate children from poor families as parents are encourage them to send the children to school। तो इससे क्या होगा, एक तो उनको खाना मिलेगा, दूसरा उनकी एजुकेशन, उनकी पढ़ाई होगी। और वो पुअर फैमिलीज़ के पेरेंट्स को इनकरेज करते हैं कि वो बच्चों को घर पर ना बिठा के, काम ना करवा के उसे स्कूल में भेजें, ताकि वो पढ़ लिख सकें और उनको खाने की चिंता नहीं रहे। It also ensures that children do not drop out from school and attend school regularly। और उनको ये भी ध्यान रखते हैं कि बच्चा रोज़ डेली स्कूल में आए, स्कूल को छोड़े ना, ड्रॉप ना करे, उसे छोड़ के काम काज पे ना जाए और स्कूल को रेगुलरली अटेंड करे। तो मिड डे मील क्या है, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है प्राइमरी स्कूल के खाना मुफ्त, जो पुअर फैमिलीज़ हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, उसे हम कहते हैं मिड डे मील। वो ये भी ध्यान रखते हैं कि ये जो गरीब जो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको वो खाना दें और वो रेगुलरली स्कूल में आए और पढ़े लिखें। नेक्स्ट है गेट टुगेदर। गेट टुगेदर। मेस, मेस में ढाबा, Mess is a common eating place for the army men and their family। Mess किस लिए है? आर्मी मैन एंड देयर फैमिलीज। तो मेस किस लिए बेटा? आर्मी मैन के लिए। Even in many training institutes, participants eat in a common dining room called mess। कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर पार्टी या जैसे अब बिग बॉस है या कुछ, बिग बॉस में भी वही इकट्ठे रखते हैं, इंडियन आइडल में भी वही इकट्ठे खाते हैं। तो ये पार्टिसिपेंट्स भी हैं, वो भी एक जगह इकट्ठे होकर डाइनिंग रूम में खाते हैं, उससे हम क्या बोलेंगे? मेस बोलेंगे। द मेस इज़ ऑल्सो कॉमन एरिया वेयर फैमिलीज ऑफ आर्मी मैन, जो आर्मी मैन की जो फैमिली सेलिब्रेट करती है उसे भी मेस कहा जाता है। स्पेशल ओकेजन, दिवाली पे सब आर्मी के पीपल, उनकी फैमिली इकट्ठे हो गई तो उसे हम क्या बोलेंगे? मेस बोलेंगे, आर्मी मेस। अब ये यू कैन सी इन द पिक्चर दैट ऑल द आर्मी पर्सन्स आर सिटिंग टुगेदर एंड ईटिंग फूड। सांझा चूल्हा इज द कॉमन oven और तंदूर where women take their own wheat flour और आटा to make चपाती। एक जगह है जिसका नाम रखा गया सांझा चूल्हा। वो एक ऐसा कॉमन ओवन है या तंदूर है जहाँ पर हर एक लेडी अपना अपना आटा या फ्लोर लेकर आते हैं ताकि वो चपाती या खाना बना सकें। नानक देव जी स्टार्टेड दिस कम्युनिटी किचन। किन्होंने स्टार्ट किया था? नानक देव जी ने। इन पंजाब, कहाँ पर स्टार्ट किया था? पंजाब में नानक देव जी ने एक कम्युनिटी स्टार्ट की थी, सांझा चूल्हा। ओके। एज मैनी कुड नॉट अफोर्ड टू मेक इट एन ओवन एट होम। ऐसे कई ऐसे घर थे जिनके घर में चपाती वगैरह वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्लेड वॉज दैट वाइल कुकिंग इट मेड एन आइडियल कम्युनिटी प्लेस टू एक्सचेंज न्यूज़ एंड स्टोरीज फ्रॉम अराउंड द विलेज। तो क्या होता था, सारी विलेज की औरतें या सारे फैमिली की जो लेडीज़ हैं वो इकट्ठी होती हैं, अपना अपना आटा लेकर आती हैं और वहाँ पर खाना बनाती हैं। इससे क्या होता है, एक साथ वो इकट्ठे होते हैं, टुगेदरनेस आती है। दूसरा, वो अपने व्यूज़ चेंज करते हैं, अपनी बात बोलते हैं, दूसरा उसकी बात में कोई फेवर में बोलेगा, कोई उसके फेवर में नहीं बोलेगा। तो ऐसे न्यूज़ भी एक्सचेंज होती हैं और स्टोरीज भी एक्सचेंज होती हैं। तो गेट टुगेदर में हमने पढ़ा मेस। मेस किस लिए होती है? आर्मी मैन और उनकी फैमिली में, जहाँ वो कॉमन प्लेस है। मेस एक कॉमन प्लेस है, यहाँ पर आर्मी मैन और उनकी फैमिलीज खाते हैं खाना। ठीक है। वो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी हो सकता है, पार्टिसिपेंट में भी हो सकता है, जहाँ पे वो कॉमनली बैठ के मेस में खाना खाते हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये सारे आर्मी मैन बैठे हैं और इकट्ठे और खाना खा रहे हैं।
एक सांझा चूल्हा है जो नानक देव जी से स्टार्ट किया गया था, कहाँ पर, पंजाब में। और ये एक ऐसा कॉमन ओवन है या तंदूर है जहाँ पर लेडीज़ अपना आटा या फ्लोर लेकर आती हैं और वहाँ पर खाना बनाती हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे ओवन, इसलिए उन्होंने एक कॉमन बना लिया कि अपने विलेज की सभी लेडीज़ अपना आटा ले आएँ, खाना चपाती बनाएं और जाएं। जब वो चपातीज बनाते हैं तो क्या करते हैं, अपने व्यूज़, न्यूज़, स्टोरीज, अपने गांव के बारे में बातें करते हैं। नेक्स्ट है ईटिंग टुगेदर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। अब है नेक्स्ट टॉपिक कि हम खाना टुगेदर खाते हैं कब, जब फेस्टिवल्स होते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद मैनी स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड सेलिब्रेट डिफरेंट रिलीजियस फेस्टिवल। इंडिया एक ऐसा वास्ट में बहुत बड़ा देश है, स्टेट है, जहाँ पर बहुत सारी स्टेट्स हैं। इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है जहाँ पर बहुत सारी स्टेट्स हैं, वहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और डिफरेंट रिलीजन अपने अपने सेलिब्रेट करते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स। ड्यूरिंग मैनी फेस्टिवल पीपल ऑफ अ कम्युनिटी कम टुगेदर टू एंजॉय। और अलग अलग फेस्टिवल में अलग अलग कम्युनिटी के लोग आते हैं और उसे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। लेट अस टेक अ लुक एट सम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया एंड द स्पेशल फूड्स। अब हम कुछ देखने जा रहे हैं फेस्टिवल और कौन कौन से फूड उस पर्टिकुलर फेस्टिवल में बनाए जाते हैं वो अब हम पढ़ेंगे। इन महाराष्ट्र ड्यूरिंग द पॉपुलर गणेश चतुर्थी। महाराष्ट्र में क्या है, गणेश चतुर्थी मनाया जाता है और पीपल क्या बनाते हैं, मोदक एज एन ऑफरेंस टू लॉर्ड गणेशा। Modak is a steamed dish that consists of a coconut and jaggery. Jaggery means गुड़ and coconut means नारियल। तो वो नारियल और गुड़ से मोदक बनाए जाते हैं और गणेश जी को ऐसे ऑफरिंग चढ़ाया जाता है। इन पेस्ट ऑफ राइस पेस्ट, राइस पेस्ट के बीच में चावल के पेस्ट बनाएंगे, पीस कर उसको पेस्ट बनाकर उसमें कोकोनट डालेंगे और जैगरी डालेंगे, फिर मोदक बनाएंगे, मोदक बना के गणेश जी को ऑफर करेंगे। क्रिसमस पुडिंग एंड प्लम केक्स आर सर्व ऑन क्रिसमस। नाउ ऑन टुमारो इज अ क्रिसमस 25th, so the Christians used to make the puddings and plum cakes. Okay, then biryani and सेवियाँ are special dish prepared by Muslim during ईद। मुस्लिम बनाते हैं ईद और वो क्या बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं और सेवियाँ बनाते हैं ईद पे। ऑन द डे फैमिली मेम्बर्स विश एवरी अदर ईद मुबारक। आपने टीवी में भी देखा होगा कि वो अपने फैमिली मेम्बर को गले लगकर क्या बोलते हैं, ईद मुबारक। द पीपल ऑफ पंजाब सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ गुरपुरब। पंजाब में क्या मनाया जाता है, गुरपुरब। विद आटे का हलवा होता है और मलाई लड्डू होते हैं, मलाई लड्डू होते हैं और आटे का हलवा होता है। मैनी हार्वेस्ट फेस्टिवल आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। हार्वेस्टिंग हमने किया है, जब कटाई होती है फसलों की तब भी अलग अलग जगह में उसे अलग अलग नाम से मनाया जाता है। इन महाराष्ट्र तिलगुल लड्डू मेड ऑफ जागरी एंड तिल सीसेम सीड्स आर प्रिपेयर ड्यूरिंग मकर संक्रांति। मकर संक्रांति तिलगुल के और जागरी के महाराष्ट्र में मकर संक्रांति के नाम पे मनाया जाता है। पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। बाय मेकिंग अ स्वीट राइस कॉल्ड पोंगल। पोंगल बनाया जाता है, पोंगल पे मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। केरला में पायसम अवियल एंड कुट्टू आर प्रिपेयर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ ओनम। केरला में क्या बनाया जाता है, ओनम, और क्या बनाया जाता है, पायसम, अवियल और कुट्टू। ओके, फ्लोरल रंगोलीज आर मेड ऑन दिस ओकेजन। और रंगोलीज भी, फ्लावर की रंगोलीज भी बनाई जाती है ओनम वाले दिन। द पीपल ऑफ असम सेलिब्रेट बिहू। असम के लोग क्या मनाते हैं, बिहू। टू मार्क द हार्वेस्टिंग ऑफ अ न्यू राइप क्रॉप। राइस क्रॉप तब उगती है तो वो क्या मनाते हैं, बिहू। दे मेक अ बैम्बू एंड अ स्ट्रॉ स्ट्रक्चर कॉल्ड बेलागर एंड सिंग एंड डांस अराउंड इट ऑल द नाइट। वो बैम्बू की बांस होता है, बैम्बू एंड स्ट्रॉ स्ट्रक्चर,
ठीक है, जो भूसा वगैरह होता है उसका बेलागर बनाते हैं और सारी रात नाचते हैं और गाते हैं। इन द मॉर्निंग द बेलागर इज लिट इन अ बॉनफायर। बॉनफायर मीन्स उसे जला दिया जाता है खुले में, ठीक है, लकड़ियों के साथ। राइस केक कॉल्ड पेठास आर स्पेशली मेड ऑन दिस। और उस दिन पेठा बनाया जाता है। ओके, सो tomorrow we will start langar and bandar, and then we will do the book exercise. So that's all for the day. Thank you, take care and read the lesson.